Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be safe and sound at home and well attending your classes regularly by the grace of Almighty Allah. Dear student, today we will read the lesson The Fantastic Shoemaker. It means बेहतरीन जूते बनाने वाला. Dear student, we have seen shoemaker in our surrounding, in our villages and cities. We have seen their shops. We also have seen different utensils they use, and the one main thing that we observe that they make shoes by using their hands, by using their scales. So the way they use their skills, their experience, and the way they make shoes is outstanding. So this lesson is written by Wahidullah, and he narrates the story of shoemaker and also describe the shop of a shoemaker. After reading the lesson, we will think about that the business of shoemaker have been greatly affected by shoes company. So let's begin our lesson today. What are the things that you should keep in mind before buying shoes? जूते ख़रीदने से पहले कौन सी बातें जहन में रखनी चाहिए? जूते ख़रीदने से पहले बहुत सी बातें जो है हम जहन में रखते हैं कि जूते किससे ख़रीदते हैं. From either to buy ready-made shoes of different companies like Service, Bata, Apricot, or to buy shoes from a shoemaker shop who makes shoes by themselves. तो हमारी कोशिश होती है कि जो जूते हम ख़रीदते हैं, एक तो हमारे पाँव पर जो है वो क्या हो, वो फिट हो. दूसरा, वो पायदार हो, यानी जब हम उसको पहने तो वो वक्त भी गुजारें. तो बहुत सी बातें हमारे जहन में होती है. What kind of shoes do you like? आपको किस तरह के जूते पसंद हैं? So everybody has its own like and dislike, and I hope all of you have your like. That what kind of shoes do you like? Where do you buy your shoes from? People buy shoes. Some buy shoes from the shops of companies like Service, Bata. But where you buy from? So tell me please, from where you mostly buy shoes and why? I first met him in my youthful days in the holy month of Ramadan, when my father took me to his shop for ordering a pair of new shoes for the coming Eid. The author Wahidullah says he used first person pronoun I. वो कहते हैं, I first met him in my youthful days in the holy month of Ramadan. उनसे मेरी पहली मुलाकात कब हुई थी? उस शूमेकर से. In my youthful days in the holy month of Ramadan. रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जब मैं जवान था, जवानी की ज़माने में मेरे उनसे पहली मुलाकात हुई थी. When my father took me to his shop
for ordering a pair of new shoes for the coming Eid. When my father, जब मेरे अब्बू, took me to his shop, मुझे उनकी दुकान में ले गए. Q for ordering a pair of new shoes for the coming Eid. जब मेरे अब्बू मुझे उनकी दुकान में ले गए ताकि आने वाले ईद के लिए नए जूतों का उनको कह दे. तो वहीदुल्लाह कहते हैं कि जब उनसे कि मेरी उनसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैं क्या था, जब मैं जवान था और रमज़ान का मुक़द्दस महीना था. चूँकि ईद आने वाला था तो मेरे अब्बू मुझे अपने साथ उनकी दुकान में ले गए ताकि मेरे लिए नए जूतों का उन ऑर्डर दे दें. So here he used past simple tense. I first met him. Met second form. When my father took me. Take and took. ले जाना. His shop was in a small but busy street of Qissa Khani Bazaar. उनकी दुकान. His shop was in a small but busy street of Qissa Khani Bazaar. उनकी दुकान क़िस्सा खानी बाज़ार के एक छोटी से गली में थी जो क्या था, वाज बिजी, जो काफ़ी मसरूफ़ गली थी. उनकी दुकान क़िस्सा खानी की एक छोटी सी लेकिन मसरूफ़ गली में वाक़ थी. इन अ स्मॉल बट बिजी. उनकी दुकान क़िस्सा खानी बाज़ार की एक छोटी सी लेकिन मसरूफ़ गली में वाक़ थी. A monster-sized black Peshawari chapel overhung on the faint-colored wooden door of his shop. Now Wahidullah give a visual description of the shop of shoemaker. A monstrous-sized black Peshawari chapel. एक बड़ा काला जूता. A monstrous size. monstrous हम कहते हैं बड़े को बिग. तो यहाँ पर a monstrous size black पेशावरी चप्पल. पेशावरी चप्पल किस तरह था? A monstrous size black. एक बड़ा काला पेशावरी चप्पल were hung on the faint-colored wooden door of his shop. एक बड़ा पेशावरी चप्पल काले रंग का उसकी दुकान के हल्के से चूबी दरवाजे पर लटका हुआ था. Overhung and overhang. It is again the second form in past simple tense. यानी सब्जेक्ट क्या है? पेशावरी चप्पल. Overhung लटका हुआ था on the faint-colored wooden door of his shop. Door किस तरह था? Faint-colored wooden. 3 adjective. Faint हल्के, faint color यानी उस दरवाजे का रंग किस तरह था? हल्का था. और वो दरवाज़ा किस चीज़ से बना हुआ था? लकड़ी से. और उसको हम उस दरवाज़े को आमतौर पर हम क्या कहते हैं उर्दू में? चूबी दरवाज़ा. तो उसकी दुकान का दरवाज़ा पर हल्के रंग का एक बड़ा सियाह रंग का पेशावरी चप्पल जो था वो लटका हुआ था, या हम कह सकते हैं अवीज़ा था. The inside of the shop was quiet and serene as that of sacred holy place. The author says the inside of the shop is quiet. दुकान का अंदरूनी हिस्सा इस तरह, दुकान का अंदरूनी हिस्सा या दुकान के अंदर का माहौल इस तरह खामोश था और पुरसकून था as that of a sacred holy place. एक किसी मुक़द्दस जगह की तरह. तो दुकान का अंदरूनी हिस्सा किसी मुक़द्दस जगह की तरह
खामोश और पुरसकून था. Quiet and serene. Quiet mean खामोश and serene mean peaceful, calm. So again, quiet and serene describe the shop. Adjective. दुकान का अंदरूनी हिस्सा, the inside of the shop is quiet and serene as that of a sacred holy place. Sacred holy place, मुक़द्दस जगह की तरह दुकान का अंदरूनी हिस्सा खामोश और पुरसकून था. There were some old wooden stools in the window and some pair of shoes were visible. There were some old wooden stools. दुकान के अंदर कुछ पुराने लकड़ी के औजार मौजूद थे. Old wooden stools. स्टूल किस तरह थे? ओल्ड थे, पुराने थे, एंड वुडन और लकड़ी के बने हुए थे. एंड इन द विंडो सम पेयर ऑफ शूज़ वर विजिबल. और वहाँ पर जो खिड़की थी दुकान में, सम पेयर्स ऑफ शूज़ वर विजिबल. वहाँ पर कुछ जूतों के जोड़े जो थे वो दिखाई दे रहे थे. वर विजिबल. विजिबल मीन दिखाई देना. A big smooth square shaped stone, a heavy wooden mallet, and all and three-legged anvil can be observed on the right side of the shop. Again he described the tools that are inside the shop. A big smooth square stone shaped stone. स्टोन किस तरह था? वहाँ पर जो स्टोन था एक बड़ा हमवार मुरब्बे शक्ल का पत्थर. A heavy wooden mallet. एक बारी लकड़ी का चूबी हथौड़ा. An awl और सू. And three-legged anvil और 3 टांगों वाला संदान can be observed in the right side of the shop. दुकान के दाएं तरफ देखे जा सकते थे. तो दुकान के दाएं तरफ एक बड़ा हमवार मुरब्बे शक्ल का पत्थर, एक बारी लकड़ी का बना हुआ चूबी हथौड़ा, एंड सू और 3 टांगों वाला संदान दिखाई दे रहा था. वहाँ पर पड़े थे दुकान के अंदर. The rest of the shop was as barren as a desert because he made only those pair of shoes that were ordered. The rest of the shop, दुकान का जो बाकी हिस्सा था, was as barren, वो इस तरह खाली था. बैरन तो हम कहते हैं बंजर को, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे खाली. दुकान का बाकी हिस्सा इस तरह खाली था एज अ डेजर्ट. किस तरह? डेजर्ट, सहरा की तरह, क्योंकि सहरा में कुछ नहीं होता. बिकॉज ही मेड ओनली दोज पेयर ऑफ शूज़ दैट वर ऑर्डर. क्यों खाली था? क्योंकि वो सिर्फ वो जूते तैयार करता था जिनका ऑर्डर दिया जाता था. यानी लोग उनसे कहते थे, लोग ऑर्डर देते तो तब वो जूते जो था वो बनाता था. At the far end of the wall of the shop was hanging a small signboard showing Zareen Gul and Brothers. दुकान के दूर आखिरी सिरे पर एक छोटा सा साइन बोर्ड लटका हुआ था, जिस पर क्या लिखा था? जिस पर लिखा था ज़रीन गुल ब्रदर्स. उस पर ये नाम लिखा हुआ था ज़रीन गुल ब्रदर्स. So shoemaker name is Zareen Gul. Here we got the name. After reading this paragraph, we came to know about the name of that shoemaker as Zareen Gul, about whom
The writer was talking. So in this first paragraph, we learn about the shop of Zareen Gul, how his shop was looked like, and what kind of tools were there in his shop. So here the author Wahidullah tried to describe, to give a visual description to the shop of Zareen Gul. इस पहले पैराग्राफ में मुसन्निफ ने काफ़ी खूबसूरती से अल्फाजों की मदद से दुकान, ज़रीन गुल की जो दुकान थी, उसको हमारे सामने जो है वो पेश किया है. एन इमेज क्रिएट्स इन आवर माइंड. आप देखिए ना, विजुअल थ्रू visual imagery, now we can see the shop of Zareen Gul. And here the poet used two similes. यहाँ पर उसने दो similes का भी इस्तेमाल किया है. क्या है वो? As quiet and serene is that of a sacred holy place. Sacred holy place जो होती है, जो मुक़द्दस जगह होती है, वो वहाँ पर खामोशी होती है और उसके साथ साथ वहाँ पर सुकून होता है. तो बिल्कुल इसी तरह इनका दुकान जो था, अंदरूनी हिस्सा, वो वहाँ पर खामोशी थी और काफ़ी वहाँ पर जो था वो सुकून भी था. और उसने जो है दूसरी जो सिमिली वहीदुल्लाह ने इस्तेमाल की है, वो क्या है? एज बेरन इज़ अ डेजर्ट द रेस्ट ऑफ द शॉप. दुकान का बाकी हिस्सा इस तरह खाली था जिस तरह सहरा. सो हियर ही यूज्ड टू सिमिली. Now move to the next paragraph. The shoes that Zareen Gul made never failed to fit in the feet, and they lasted extraordinarily longer than usual. The shoes that Zareen Gul made, Zareen Gul जो जूते बनाता था, never failed to fit in the feet. वो हमेशा पाँव में सही फिट होते थे. यानी आप लोगों से जब ऑर्डर पर जूते बनाते थे, उनसे नाप लेते, तो कभी भी वो क्या था, नेवर फेल्ड. कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि आपने जूते किसी बंदे के लिए बनाए और वो या छोटे थे या बड़े थे या वो बहुत ज़्यादा तंग थे या बहुत ज़्यादा कुशादा थे. एंड दे लास्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरली लॉन्गर देन यूजुअल. और वो जूते वो ज़्यादा वक्त जो थे वो गुजारते थे देन यूजुअल. आम तौर पर जूते जो है हम 1 साल या 2 साल पहनते हैं, तो वो आम जूतों से ज़्यादा वक्त जो था वो गुजारते थे. टू मेक शूज़, सच शूज़ एज ही मेड सीम टू मी एंड देन एम सीम टू मी नाउ मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. मुसन्निफ क्या कहते हैं? टू मेक शूज़, जूते बनाना. सच शूज़ एज ही मेड, इस तरह के जूते जो वो बनाता था. सीम टू मी देन एंड सीम टू मी नाउ. देन एंड नाउ, उस वक्त और अब. उसके जूते उस वक्त भी और अब भी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. ऐसे जूते जो वो बनाता था उस वक्त भी और आज भी मुझे बहुत अजीब मालूम होते हैं. Why to make shoes look to the author Wahidullah mysterious and wonderful. यानी मुझे बहुत मिस्टीरियस, उसमें मेरे लिए क्या था, तजस्सुस था. मुझे अजीब सा लग रहा था और वो काफ़ी शानदार थे. एंड वंडरफुल. आई स्टिल रिमेंबर माई हेजिटेंट रिमार्क्स वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूड. आई स्टिल रिमेंबर, द ऑथर सेज, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अब भी याद है, माई हेजिटेंट रिमार्क्स, मुझे अब भी
अपने वो रिमार्क्स, अपनी वो बात याद है जो मैंने घबराहट में कही थी। वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूट, जब मैं उसको अपने पाँव का नाप दे रहा था, और उस वक्त मैंने हिचकिचाहट में जो बात कही थी वो मुझे अब भी याद है। मैंने क्या बात कही थी उस वक्त? Isn't it awfully hard to make shoes in such a tough condition? मैंने क्या बात कही थी उससे? मैंने उससे पूछा था Isn't it awfully hard to make shoes in such a tough condition? इतने सख्त हालात में जूते बनाना, क्या इतने सख्त हालात में जूते बनाना मुश्किल नहीं है? क्या ऐसे सख्त हालात में जूते तैयार करना बहुत मुश्किल नहीं है? मैंने उनसे ये बात कही थी। The serpentine wrinkles wriggled on his smiling face, and he answered, "It is an art." तो जब मैंने उनसे ये बात कही, The serpentine wrinkles, wrinkles, उसके माथे पर जो लकीरें थी, जब वो हम खाती हुई दौड़ने लगी उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर, तो उसने क्या जवाब दिया? इट इज़ एन आर्ट। बेटा ये क्या है? ये तो एक फन है। क्या है? इट इज़ एन आर्ट। सो हियर मेकिंग शूज़ इज़ नॉट a business but is an art, and the artists, when they paint something, when they create something, so they use their full enthusiastic, अपनी पूरी की पूरी दिलचस्पी जो है उसमें इस्तेमाल करते हैं, और बेहतरीन से बेहतरीन तख्लीक जो है उनकी कोशिश होती है कि वो बने। So dear student, it was our lesson for today. I hope you enjoyed the lesson. Thank you.